Hello, good evening. How are you? I hope you all are doing well. Yes, today I'm start with lecture number 4 of LPP. In this lecture I discuss the questions for when feasible region is unbounded. Okay? तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसका पहले उसको देखते हैं. Yes. Case 2. First case I was completed. The first name of first case is when feasible region is bounded. Now, when feasible region it means सबका जो common आता है. Feasible region is unbounded. Okay? Yes. If objective function is z equal to ax plus by, then so procedure. First, if maximize the objective functions and feasible region is unbounded, then you can say that whose the maximum value of objective functions z is not possible. ये लाइन लिखनी है आपको. कब? जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइज करना और फिजिबल रीजन क्या आ जाए? अनबाउंडेड. ओके, तो आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल. ध्यान रखना. सेकंड, इफ minimize the objective functions and feasible region is unbounded, then solve as previous. पहले की जैसे प्रीवियस. केस फर्स्ट क्या था? व्हेन feasible region is bounded. Okay, feasible region is bounded. Feasible region is bounded. Okay, तो पहले के 4 स्टेप थी. से here m क्या है? is the minimum value of if, है ना? if m is the minimum value of objective functions, then first solve as previous questions. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये लाइन लिखना है, इसको ध्यान से पढ़ो. इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम a table. स्टेप 4 थी ऑफ स्टेप 4. याद है? टेबल से कुछ वैल्यू आती थी, मिनिमम m कह दिया. Now draw the diagram of
diagram of ax plus by less than m. Yes guys, this is very important. ax plus by, ये ax plus by कौन है? वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. लेस देन आएगा m मिनिमम वैल्यू. बट अभी ये श्योर नहीं हुई है, अभी रुको. अभी देन इसका डायग्राम बनाना है. ओके तो इसी में चल रहे हैं अपन, सेकंड स्टेप में चल रहे हैं. सेकंड स्टेप का है फर्स्ट पार्ट. सेकंड, if region of above inequality, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा. above inequality ये वाली, and feasible region having common part, कुछ कॉमन पार्ट रखते हैं, ओके. तो कुछ कॉमन पार्ट रखते हैं. then we can say that the minimum value of objective functions is not possible. अभी not possible ही कहेंगे. but both not having common part, अगर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं रखते हैं, both not having common part, then minimum value of z is m. जो आंसर आया वही है, जो टेबल से जो आंसर आया था वही रहेगा. देखो यहाँ टेबल से आंसर आया था, ये मतलब जो अपने पहले वाले जो बाउंडेड वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें टेबल तक तो सॉल्व करनी है. अब टेबल से जो भी मिनिमम वैल्यू आई है उसका भी श्योर नहीं कह सकते हैं जब तक ये कंफर्म नहीं हो कि इस इनइक्वालिटी और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन ना आए. तो आंसर ये उल्टा है, कॉमन नहीं आए तो आंसर है, कॉमन आ गया तो नन ऑफ दिस एग्जिस्ट ही नहीं है. ओके तो इससे पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला. अब टाइम तो कम है फिर भी देखते हैं. यस मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल इनइक्वालिटी. यस लुक ऑन द बोर्ड, देखते जाइए. इज इक्वल टू -5 1. ओके अब वो इनइक्वालिटी में डायरेक्ट देख लूँगा. ओके यहाँ देख लो. तो करस्पॉन्डिंग लाइन, करस्पॉन्डिंग लाइन 2x minus y. Okay, now draw its diagram. x y 0 0, x equal to 0 5 0 comma 5 and this is -5/2. Okay, now second देख लो आप, greater than equal to 3. now line 3x plus y is equal to 3. तो ये x 0 0 0, x equal to 0, y equal to 3, y equal to 0, x equal to 1. now last 2x minus 3y
2x minus 3y less than, corresponding line, 2x minus 3y is equal to 12. Draw its diagram, put 0, 6, y equal to 0, x equal to 0, x equal to 0, y is equal to minus 4, 0 comma minus 4, y equal to 0, x equal to 6. Yes. Draw all points. Plot the all points. Yes guys. देखते जाओ. Y axis, this is x axis. Okay. This is origin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay. Now, put 0, 5. First of all, 0, 5. This is 0, 5. Okay. Now, minus 5 by 2, 0. ये minus 2 है तो minus 5 by 2 यहाँ होगा. Minus 5 by 2, 0. Yes. Join these point. Okay. Now which line? 2x minus y is equal to minus 5. Next, put the origin. 0, 0. Put origin. Set this inequality satisfy or not? 0 minus 5 से बड़ा होता है. Yes. So origin की ओर सेलेक्ट कर दो इसको. डायरेक्ट कर रहे हैं उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं. ये बनाना आना चाहिए. ओके. नाउ अब इसका डायग्राम बनाओ. यस. 0,3. दिस इज 0,3. ओके. Now 1, 0. This is 1, 0. Now join these point. Line is 3x plus y is equal to 3. Put second. Next 0, minus 4. 0, minus 4. Yes. And 6, 0. This is 6, 0. Join these point. अच्छा, इसमें ओरिजिन देखना था. सॉरी. पुट 0, 0. 0, 0 पुट करेंगे. 0 इज ग्रेटर देन 3. फॉल्स. सो ओरिजिन से अपोजिट साइड. फॉल्स आ गया ना. तो ओरिजिन से अपोजिट साइड. ये रहा अपोजिट. अब इसमें ओरिजिन पुट करेंगे. 0, 0. 0 लेस देन 12. यस. 0 12 से छोटा होता है. तो ओरिजिन के अलोंग कर लेंगे इसको. ओके. यस. चेक कॉमन एरिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है बिकॉज x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है. यस. तो ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये कह रहा है इधर जाओ. ये पार्ट भी कॉमन नहीं है, इधर आना है. ये भी कॉमन नहीं है तो बचा क्या है? यही है. बस इसको आराम से आप सेलेक्ट कर दो. This is feasible region. Feasible region with unbounded. अभी अनबाउंडेड आ गया और मिनिमम का क्वेश्चन से. यस. तो वो तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो करनी है टाइप 4 तक. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कॉर्नर पॉइंट. दिस इज 6, 0. 1 कॉर्नर पॉइंट. ओके. 1, 0. Second corner point A, B. This is C and then this is D. Corner point आ गए. Now table. और value of Z max is minus 20x plus 20 minus 50x plus 20y. Okay.
नाउ टेबल, थर्ड स्टेप तो कॉर्नर पॉइंट आगे हुआ है ना, डायग्राम में बता दिए। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स ए 1,0, बी 6,0, सी 0,3, डी 0,5. Yes, objective functions z max is equal to minus 50x plus 20y. तो इस पे वैल्यू चेक करनी है। 1 minus 50 minus 300 and 60 and 100. Yes, minimum minus 300. Okay, now for अनबाउंडेड रीजन एक फिफ्थ स्टेप और है, बस ये सीखनी है आज आपको। ओके, तो क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन एम, तो माइनस 50x प्लस 20y लेस देन माइनस 300, इसका डायग्राम बनाना है। ओके, तो वही लाइन माइनस 50x प्लस 20y line, put 0, x equal to 0, y getting minus 0 से 0 cancel out, minus 15, 0 comma minus 15, y equal to 0, x 6 comma 0, और origin put कर लो, तो put 0 0, तो क्या मिल रहा है 0, तो क्या मिल रहा है false, अपोजिट टू ओरिजिन। पहले ये पॉइंट ड्रॉ करें, 0 कॉमा माइनस 15, 0 कॉमा माइनस 15, ये रहा। जीरो कॉमा माइनस 15 इधर कहीं होगा, और 6,0 ये, तो इसको ड्रॉ कर दो। यस, 6,0, ये पॉइंट आ गया 0 कॉमा माइनस 15। अच्छा, लाइन डॉटेड बनानी है, लाइन डॉटेड ही बनेगी। डॉटेड क्यों बनेगी, क्योंकि इक्वल साइन नहीं था, ओनली इक्वल साइन नहीं था, ओनली लेस देन था। ओके, इसलिए डॉटेड लाइन बनती है, ध्यान रखना है ना। तो डॉटेड लाइन हो गई। अब ओरिजिन से अपोजिट, तो ये वाला एरिया आ गया, ये वाला। यस 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 यस, कुछ कॉमन आ गया, कुछ पार्ट कॉमन आ गया। दिस इज कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट। सो z minimum not exist, यहाँ लिख देंगे अपन लास्ट में। feasible region and above inequality having some common part. So z minimum is not exist. बस ये आंसर लिखना है। अच्छा, कॉमन नहीं आता तो आंसर क्या होता, -300। ओके, कॉमन आ रहा है, नॉट एग्जिस्ट, उल्टा है। कॉमन नहीं होता तो आंसर जो पहले आ चुका है वही। ओके, ये आया था, वही आंसर रहता जब कॉमन नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम रह रही थी, एग्ज़ाम में वैसे नहीं आती है। यस गाइस, ये अपना वर्किंग रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसको लिखना होता है। प्लॉट द कंस्ट्रेंट, गेट द फिजिबल रीजन, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कॉर्नर पॉइंट एंड ऑप्टिमल वैल्यू। ओके,
तो ये वर्किंग रूल है, ये एक्सरसाइज है। तो ये आपका होमवर्क है, कल भी मैंने होमवर्क दिया था। मान लो उसमें अनबाउंडेड होगा तो आज वो ट्राई कर लेना, कोई क्वेश्चन अनबाउंडेड का होता है तो वो ट्राई कर सकते हो। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।